Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So as we had started the series of SEM 5, today is the second video, the important questions of industrial pharmacy. So industrial pharmacy first time it gets introduced, baki pharmacology and medicinal chemistry already you have studied some of it, other drugs classification in SEM 4. So industrial pharmacy में basically आपको tablets, capsules, pre-formulation, injectables, aerosols, you get to know about all these dosage forms and different routes of administration as well. So 5 units में हमने divide किया है important question. Speaking about unit 1, pre-formulation studies is important as a individual question, and if you go to see the BCS classification जो MCQ point of view से important है, also for the students who are preparing for GPAT, BCS classification is extremely important. You just need to remember the different types of BCS classification. Like there are 4 main types based on their permeability and based on their solubility. So you need to know the classification as well. If we go to see class 1 drugs of BCS classification, they are highly permeable and highly soluble. Class 2 are highly permeable but not highly soluble. Similarly, class 3, they are highly soluble but not highly permeable. And class 4, they are neither permeable nor they are soluble. So obviously अब ये दोनों है orally ले सकते हैं. Can we take it orally? Yes, it would be orally active if it is permeable and soluble. But if it is neither permeable nor soluble, it has to be taken parenterally, यानी कि injection के form में. If it is orally inactive. So in this way you can study the BCS classification, and you need to remember at least one example of each drug. Jaise paracetamol is a widely used drug for analgesic antipyretic activity, and it belongs to class 2 BCS classification. Similarly, pre-formulation classification में अलग-अलग properties है जिसके basis पे आप pre-formulation studies करते हैं. What are pre-formulation studies? You need to know that अगर हम कोई भी नया ड्रग सपोज सिंथेसाइज करते हैं, सपोज हमने पहली बार पैरासिटामोल को सिंथेसाइज किया, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि डाइसोल्यूशन रेट, सल्यूबिलिटी, the different other parameters like refractive index, optical rotation, pH. Then we need to take in account the chemical properties, whether it undergoes any oxidation or reduction reaction, does it have any polymorphism, or does it undergo epimerization. The stability studies. There are two types of stability studies. One is normal stability studies and other is accelerated stability studies according to the ICH guidelines. It is very important, ICH guidelines. You need to know some of its points. So stability studies and other thermal properties, optical properties, these are the various parameters on which you actually perform the pre-formulation. So it can come as a short note, and you need to mention at least the major points of physical, chemical, microbial, thermal, optical, kinetic, etc. Speaking about the unit number 2, the most important question that has to come is from tablets. Either tablet के classification तो बहुत कम पूछते हैं, oral tablets or sublingual or inserts. Tablet tooling के बारे में भी it's not asked much often, but you need to remember that there are 4 types of tooling, not 2. You need to see Lachman for that. Lieberman and Lachman is the best book. BD tooling, DB tooling, B tooling and D tooling. These are the 4 kind of toolings based on the punch diameter and die diameter. So अलग अलग टैबलेट की कोटिंग्स मशीन भी होती है, like immersion sword system, Pellegrini pan, conventional pan, fluidized bed coater, booster coater. So you need to know the tablet tooling. Speaking about tablets, so the excipients that we add, excipients क्या होता है, अगर suppose paracetamol है 500 milligrams, okay. So अब 500 मिलीग्राम इतनी कम क्वांटिटी है कि हम इसे सिर्फ नहीं ले सकते, और इसको मेजर करना इज वेरी डिफिकल्ट ऑन वेइंग बैलेंस. सो हमें इसके साथ कुछ ऐसी चीजें डालनी है ताकि इसका वेट बढ़े, और ये जो चीजें ये इंटरैक्ट भी नहीं करनी चाहिए पैरासिटामोल के साथ. सो इसका वेट बढ़े ताकि हम उसको मेजर कर पाए. सो हम इसके लिए ना
कुछ एक्सीपियंट्स डालते हैं जैसे कि बाइंडर्स, ग्लाइडेंट्स, disintegrants and diluents. Diluents are mainly called as bulking agents because ये टैबलेट का वेट बढ़ाते हैं. अगर आप पैरासिटामोल या डोलो की टैबलेट देखते हैं तो वो टैबलेट थोड़ी सी हैवी होती है. The heaviness of the tablet is majorly 60% due to the diluent. Disintegrates, अब आपने वो टैबलेट खाई है बट अब वो टैबलेट पूरी की पूरी ऐसी ही रहे पेट में, इट्स नॉट नेसेसरी. वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी तभी उसका, अगर बुखार है तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी उसके मॉलिक्यूल्स, तभी वो बुखार कम होगा. सो इट नीड्स टू गेट डिसइंटीग्रेटेड. ग्लाइडेंट, अगर उसका फ्लो ही अच्छा नहीं, अगर वो टैबलेट हम जब बना रहे हैं इन द टैबलेट मशीन, अगर वो टैबलेट चिपक रही है अलग अलग और वो इजेक्शन नहीं हो पा रहा है उसका प्रॉपर इजेक्शन, सो वो टैबलेट चिपक जाएगी और टूट जाएगी इवेंचुअली. और बाइंडर्स, अब हमने टैबलेट सारे एक्सीपियंट्स डाल दिए लेकिन अगर ये सारे एक्सीपियंट सेपरेट हो रहे हैं, ये एक साथ नहीं रह रहे हैं, बाइंड ही नहीं हो रहे, तो क्या फायदा फिर इंडिविजुअली ही ले लेते. सो इट्स वेरी एसेंशियल कि आप ये सारे एक्सीपियंट्स याद रखें विथ रिस्पेक्ट टू टैबलेट्स. एंड ऑल्सो टैबलेट्स में डिफरेंट डिफेक्ट्स होते हैं जैसे चिपिंग हो गया. यू नो देर आर 4C, 4B, 3E's, 1M, 1L, 2P, 1S and 1T. So C, chipping, cracking, capping, cratering, blistering, bridging, blushing, blooming, engraving, embossing, erosion, mottling, lamination, pitting, picking, sticking, twinning and orange peel effect. So ये जो है सारे आप इनमें से you can make a mnemonics, but these are the initials of all the tablet defects. चिपिंग इज बेसिकली, काफी बार आपने देखा होगा अगर हम एक टैबलेट लेते हैं विटामिन सी की टैबलेट, सो उसके साइड से थोड़ा सा कोटिंग निकला होता है. इट्स वेरी एसेंशियल कि हम इन टैबलेट्स को कंज्यूम ना करें बिकॉज इफ दे हैव डिफेक्ट्स देन डेफिनेटली वो आइदर उसका कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा है या तो उसकी डिसइंटीग्रेशन रेट पे फर्क पड़ेगा एंड इवेंचुअली द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग कैन ऑल्सो वेरी. क्रैकिंग, काफी बार ड्रग जो है वो टैबलेट जो है वो क्रैक्स हो जाती है, कोर हो, अगर वो टैबलेट विद इन टैबलेट है और अ सिंगल टैबलेट, यू कैन सी देयर आर वेरियस क्रैक्स. क्रेटरिंग, देयर आर क्रेटर्स, थोड़े बम्स आ जाते हैं टैबलेट के ऊपर, मतलब थोड़े थोड़े काफी बार मुंह पे पिंपल्स होते हैं वैसे क्रेटर्स फॉर्म हो जाता है टैबलेट के पिंपल्स, यू कैन कोरिलेट. एंड कैपिंग, कैपिंग जो होती है इट इज अ सेपरेशन ऑफ टैबलेट्स, लेकिन कैपिंग में सिर्फ उसका क्राउन अलग होता है, मतलब एक टैबलेट दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, सिर्फ उसके ऊपर का थोड़ा सा क्राउन हट जाएगा. जैसे अगर इंसान की एक पूरी बॉडी है, सो अगर हम उस बॉडी में से हेड को अलग कर देते हैं और उसकी अलग पूरी बॉडी को अलग करते हैं, दैट इज कैपिंग. बट लैमिनेशन जो है वो एग्जैक्टली आधी कर देता है टैबलेट को, यानी कि अगर मैं आपकी बॉडी को बीच से काटूं सो दो पार्ट्स बन जाएंगे, दैट इज लैमिनेशन, टू कंप्लीट और पार्शियल सेपरेशन ऑफ टैबलेट्स. बट कैपिंग जो है वो सिर्फ क्राउन का सेपरेट होना होता है. सिमिलरली आपको ये सारे जो डिफेक्ट्स हैं ये पढ़ने हैं in detail. Just remember the causes and remedies. Two causes and two remedies of each defect is suffice. Nobody is going to ask you so much in detail about it, but दो आपको definitely remember रखने हैं याद. Speaking about granulation, granulation जो है हम तीन टाइप के ग्रैन्युलेशन कोटिंग हो सकती है. एक जो है वो डायरेक्ट कंप्रेशन है, एक जो है वो ड्राई ग्रैन्युलेशन है और एक है वेट ग्रैन्युलेशन. ऑलवेज रिमेंबर डायरेक्ट कंप्रेशन में हम सारी चीजें एक साथ लेकर सीधा उसको मिक्स करने लगते हैं और बाद में लुब्रिकेंट डालते हैं. बट ड्राई ग्रेन्युलेशन में लुब्रिकेंट पहले डालते हैं, उसके बाद अलग अलग प्रोसेसेस जैसे कम्बिन्यूशन, सीविंग, मिक्सिंग, डेडस्टिंग, कोटिंग, इंजेक्शन, ये सारे प्रोसेस होते हैं. बट वेट ग्रेन्युलेशन में ना हम उसको वेट करते हैं, कपड़े अगर हम धोते हैं तो उसको वेट करते हैं, राइट. सिमिलरली टैबलेट के जो कोटिंग टैबलेट के लिए हम वेट ग्रेन्युलेशन से प्रिपेयर करते हैं, सो उसमें हम कोई चीज यूज करते हैं जैसे वेटिंग एजेंट फॉर वेटिंग द टैबलेट. So wet granulation is widely used method
एंड वेट बाइंडर्स यूज होते हैं उसमें, सिमिलरली ड्राई ग्रेन्युलेशन में ड्राई बाइंडर्स यूज होते हैं। स्पीकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कोटिंग, कोटिंग के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे फिल्म कोटिंग हो गया, शुगर कोटेड टैबलेट्स हो गए। जेम्स खाई है आपने, जेम्स इज अ शुगर कोटेड टैबलेट फॉर्म। सो इफ यू गो टू सी जेम्स अलग अलग कलर के आते हैं, पिंक ऑरेंज, सो वो जो लेयर होता है उसके ऊपर, दैट इज शुगर कोटिंग। और एक होता है एंटरिक कोटेड, कुछ टैबलेट्स होती हैं जो एंटरिक कोटेड होती है, और एक होती है कोलॉन कोटेड। सो एंटरिक कोटेड टैबलेट्स वो होती हैं जो कुछ काफी बार कुछ ड्रग्स होते हैं जो डिग्रेड हो जाते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में, स्टमक में, और वो अगर इंटेस्टाइन तक पहुंचना है तो वो पहुंच भी नहीं पाते। सो स्टमक के जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये एंटरिक कोटिंग करनी है, ताकि हमारा ड्रग जो है वो डिग्रेड ना हो एसिडिक में। तो उसको हम ऐसे कोट से कोटिंग देंगे जिससे वो थैलेट्स, मेनली थैलेट्स आर यूज्ड फॉर एंटरिक कोटिंग, तो वो थैलेट्स जो है वो खुद एक बार हो सकते हैं एंटरिक में डिग्रेड, बट वो जो ड्रग है, जो मेन टैबलेट है, उसको आपको वो उस टैबलेट को डिग्रेड नहीं होने देगा। और मेनली ये जो एंटरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं ये सारी ओमी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की होती है, मतलब काफी बार एसिडिटी होती है या फिर एसिड रिफ्लक्स होता है, हमें एसिड रिफ्लक्स से बार बार कॉफ होता है, एसिडिटी बोलते हैं ना, काफी बार हार्ट बर्न हो रहा है, ऐसा लग रहा है दिल जल रहा है, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लक्स। सो ओमीप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रैपीप्राजोल, ये सारे प्राजोल्स जो हैं ये इनकी एंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स ही होती है, क्योंकि ये पीपीआई है यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, तो ये एसिडिटी को कम करते हैं। You always need to remember the basic logic behind every coating. अगर हम कोटिंग दे रहे हैं तो ऐसी क्या जरूरत है उसको कोटिंग देने की, सीधा टैबलेट भी तो ले सकते हैं, उसको कोट क्यों कर रहे हैं? You need to remember that in detail. And the next and the last question from this unit is evaluation of suspension and emulsion. This you have covered in semester 1 pharmaceutics as well. There are different tests like conductivity test for emulsions, dilution test, dye test, cobalt chloride test. These are the tests that are evaluation tests for emulsion. Conductivity, अगर वो O by W है, अगर हम पानी है, पानी is a good conductor of electricity. अगर हम हाथ पानी में डालते तो definitely हमको shock लगेगा when if there is an electric supply to it. So O by W emulsion will show conductivity positive. Similarly fluorescence, अगर आप ऑयल के ग्लोब्यूल्स जो है, अगर आप सनफ्लावर ऑयल, कोई भी ऑयल सपोज यूज करते हो, उस पर फ्लोरेसेंस इम्पार्ट करेंगे ना, सो वो पूरी ऑयल फैल जाएगा वो फ्लोरेसेंस। सो इफ फ्लोरेसेंस टेस्ट इज पॉजिटिव, सो इट मीन्स कि वो सस्पेंशन इमल्शन जो है वो W by O इमल्शन है, यानी कि उसमें ऑयल ज्यादा है। डाइल्यूशन टेस्ट, अगर आप O by W को पानी में डालते हैं तो वो थोड़ा घुल जाएगा, उसका वाटर फेस, तो वो घुलना जो है वो O by W को प्रिवेंट इंडिकेट करेगा। डाई टेस्ट, अगर हम कोई वाटर सोल्यूबल डाई यूज करते हैं, एमेरांथ और सुडान रेड और वाटर इन सोल्यूबल डाई, तो हमको सिमिलरली वाटर सोल्यूबल डाई में O by W इमल्शन होगा, और वाटर इन सोल्यूबल डाई विल इंडिकेट W by O इमल्शन। These are the quality evaluation test for emulsion. Similarly सस्पेंशन में जो होते हैं, काफी बार आई ड्रॉप्स जो होता है वो सस्पेंशन फॉर्म में होता है, इसीलिए काफी बार लिखा हुआ होता है कंटेनर के बाद शेक वेल बिफोर यूज, इसलिए हम हिलाते हैं अगर वो सिरप है, अगर वो सस्पेंशन फॉर्म है या आई ड्रॉप्स या कोई भी है, तो हम उसको शेक करते हैं बिफोर अप्लाइंग इट, दैट मीन्स इट्स अ सस्पेंशन, उसमें पार्टिकल्स है। अगर हम उसको शेक नहीं करते तो सिर्फ फ्लूइड जाएगा, जो सॉल्वेंट है, जो पार्टिकल्स है वो जाएंगे नहीं जो डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन है। सो अगर हम उसे शेक करते तो वो पार्टिकल रीडिस्पर्स हो जाएंगे, सो वो सारे ओवर द सॉल्वेंट में भी अवेलेबल होंगे। सो डिग्री ऑफ सेडिमेंटेशन and rate of sedimentation, degree of flocculation and rate of sedimentation, these are important quality evaluation and quality control tests for suspension. These you have already covered before in our previous semesters as well, so just एक बार इसको revise करके लेना। अब speaking about the unit number 3, so unit number 3 से सबसे ज्यादा important है difference between hard gelatin capsule and soft gelatin capsule. सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल बेसिकली विटामिन ई की कैप्सूल जो आती है वो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होती है। सो हमने देखा होगा कि वो काफी इजी
उसको व्हेन वी प्रेस इट वो काफी ज्यादा स्पॉन्जी होती है, वो स्प्रेड हो जाती है। मेनली एम्फेटामाइन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की टैबलेट कैप्सूल्स होती है। एम्फेटामाइन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। सो ये क्या चीज है जो हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन को अलग करती है? सो एक टर्म होता है प्लास्टिसाइजर, यानी कि इट विल इम्पार्ट अ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपने इलास्टिक देखा होगा तो इलास्टिक को हम जितना भी खींचेंगे वो खींचता है बट एक एक्सटेंट तक, बट वो खींचेगा। एंड व्हेन हम उस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो वापस रिलीज करते हैं तो वो वापस उतनी ही साइज का हो जाएगा जितनी साइज का पहले था। सिमिलरली प्लास्टिसाइजर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देगा, यानी कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को आप जब दबाओगे तो वो दब जाएगा, वो सॉफ्ट है, वो फ्लेक्सिबल है। बट अगर आपने कुछ ज्यादा एक्सटेंट तक ही दबा दिया तो उसके अंदर का लिक्विड या कोई सेमी सॉलिड कोई अदर डोसेज फॉर्म होगा वो सीधा बाहर ऊज आउट हो जाएगा। और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में ये प्लास्टिसाइजर कम है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो आप उसको थोड़ा दबाएंगे तो वो इतनी इजीली प्रेस नहीं होगा। ऑल्सो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, कौन से टाइप ए जेलेटिन, टाइप बी जेलेटिन, ब्लूम स्ट्रेंथ में डिफरेंसेस हैं, कौन से डोजेज फॉर्म के लिए यूज होते हैं कैप्सूल्स एंड अदर एक्सीपिएंट्स, और इसकी फॉर्मुलेशन टेक्निक्स भी अलग है। मशीन्स फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज डिफरेंट, मशीन्स फॉर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल इज ऑल्सो डिफरेंट। But study the basic difference between these two gelatin capsules and do refer Lachman for capsules. Pelletization, pelletization एक ऐसी टेक्निक है, अगर हमारे पास अभी टैबलेट्स और कैप्सूल्स ये काफी बड़े बड़े डोसेज फॉर्म है, राइट? अगर हमें कोई एकदम स्मॉल नैनो डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करना है, काफी बार कोई ओल्ड जेरियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं जो जिनका अगर साइकोलॉजिकल बैलेंस थोड़ा सा अनस्टेबल है, सो वो लोग दे आर नॉट इजीली एक्सेप्टेबल टू डोसेज फॉर्म। तो पेलेट्स जो है वो स्मॉल स्मॉल डोजेज फॉर्म में ऐसा है जिस जो इजीली हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अलग अलग मेथड्स है जैसे एजिटेशन, बॉलिंग, लेयरिंग, स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे कंजीलिंग। ये सारी पैलेटाइजेशन टेक्निक्स आपको अच्छे से याद कर लेनी है एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक्स, सो गो थ्रू इट वंस। अदर इज क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कैप्सूल्स। कैप्सूल्स की मेनली 4 से 5 क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। नंबर 1 इज शेल इंटीग्रिटी। वो हमने जैसे मेंशन किया, अगर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है वो दब रहा है तो कितना दब रहा है, कितनी एक्सटेंट तक हम उसको प्रेस करेंगे तो वो बाहर नहीं आएगा, ये है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ब्लूम स्ट्रेंथ, जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कंपल्सरी क्वेश्चन। ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो कोहेसिव स्ट्रेंथ है, मतलब फोर्स बिटवीन द जेलेटिन मॉलिक्यूल्स, कितना फोर्स है जेलेटिन मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब ब्लूम स्ट्रेंथ बेसिकली 150 होती है फॉर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इट्स अराउंड 200 to 250। यू नीड टू रिमेंबर दिस। आयरन कंटेंट, अगर हमें जेलेटिन यूज करते तो जेलेटिन जो है वो एनिमल से आता है, आइदर बोन से, बोवाइन बोन से, या तो पोक की स्किन से, तो उसमें आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है, आयंस। ये आयरन कंटेंट जो है ये 15 ppm से कम होना चाहिए, यानी कि 15 पार्ट्स पर मिलियन। और एक नेक्स्ट पैरामीटर जो है bloom strength is very important, you need to just focus on that, and the next parameter is viscosity। विस्कोसिटी कितनी है उसकी, अगर हम जेलेटिन कैप्सूल ले रहे हैं तो द विस्कोसिटी बेसिकली शुड बी 25 to 45 मिलीपॉइस। कोई भी कैप्सूल हो इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकती उसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, वो कितना गाढ़ा है। अगर आप पानी लेते हैं तो पानी कम गाढ़ा होगा, लेकिन अगर आप पानी में सपोज इफ यू मिक्स एनीथिंग, शुगर और वट एवर, इट विल फॉर्म अ सिरप, चाशनी बन जाएगी। चाशनी जो है वो पानी से ज्यादा कंसिस्टेंट, उसकी ज्यादा विस्कोस होती है। सो दैट इज द विस्कोसिटी पैरामीटर। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटेरल्स, एलवीपी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेंटेरल सबसे पहले अपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, पैरा मींस आउटसाइड और एंटेरॉन मींस इंटेस्टाइन। कोई भी ऐसा डोसेज फॉर्म जो आप इंटेस्टाइन के बाहर दे रहे हैं, इंटेस्टाइन के बाहर से जिसका टारगेट है, वो पैरेंटेरल। इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ इंजेक्शंस होते हैं जो पैरेंटेरल होते हैं, आई ड्रॉप्स भी हैं जो पैरेंटेरल हो सकते हैं, आप उसको ओरली तो लेते नहीं है आई ड्रॉप्स। ईयर ड्रॉप्स भी होते हैं जो पेरेंटेरल हो सकते हैं, राइट? बस उसका एक्शन जो है वो लोकल एक्शन होता है। अगर आप ईयर ड्रॉप्स ले रहे हैं तो वो ईयर पे काम करेगा, टेनिटस या तो कोई भी अदर ईयर डिजीज। आई का है तो वो ग्लाउकोमा
या कैटरैक्ट और वट एवर XYZ डिजीज, उस पे लोकलाइज्ड एक्शन होगा, सिर्फ आईज पे काम करेगा। एंड लार्ज वॉल्यूम एसवीपी एंड एलवीपी में एक बहुत मेजर डिफरेंस है, वो आपको बाय हार्ट करना होगा एंड समझना होगा, बिकॉज एलवीपी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द टाइप्स ऑफ ग्लासेस वी यूज, कौन से, अगर हम पेरेंटेरल जो है हम डायरेक्टली अपने ब्लड स्ट्रीम में यूज करते हैं तो वो स्टराइल होना चाहिए, पायरोजन फ्री होना चाहिए। अगर वो स्टराइल नहीं है, अगर उसमें पायरोजन है, सो एक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, जहां पे आपको इंजेक्शन मारा है वो पूरा सूज जाती है वो जगह, वो स्वेल हो जाती है, रेड हो जाती है, पस हो जाता है। सो यू नीड टू सी, डॉक्टर्स इसीलिए केयर रखते हैं ताकि इसे स्पेसिफिक स्टोरेज पर ही रखे, so that area does so that it's away from any microbial contamination. Speaking about the vehicles use, अलग अलग vehicles use होती हैं, water miscible, water immiscible, aqueous, water for injection WFI, sterile water for injection and bacteriostatic water for injection. इन तीनों बीच का डिफरेंस याद रखिए। वाटर फॉर इंजेक्शन जो है ये पायरोजन फ्री तो होता है लेकिन ये स्टराइल नहीं होता है। स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन स्टराइल होता है और पायरोजन फ्री भी होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन स्टराइल भी होता है, पायरोजन फ्री भी होता है, और इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ भी स्टैटिक होता है, इट इज प्रिवेंटेड। ऑफ्थैल्मिक प्रेपरेशंस की भी अलग अलग टेस्ट होती है। इरिटेंसी टेस्ट, अगर आप आई ड्रॉप्स अपनी आंखों में डाल रहे हैं तो क्या पहले वो टेस्ट की जाती है कि अगर कोई इरिटेंसी तो नहीं कॉज कर दिया, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, कंजंक्टिवाइटिस तो नहीं है, वो लाल लाल आंखें हो जाना, इज दैट पॉसिबल और नॉट, दैट इज ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट। लास्ट मिनट जो है सबसे पहला क्वेश्चन है उससे, प्रेपरेशन एंड पैकेजिंग ऑफ लिपस्टिक्स। लिपस्टिक्स में अलग अलग हम यूज, सिर्फ कलरिंग एजेंट नहीं होता कि हाँ रेड कलर ले लिया लिपस्टिक हो गई। लिपस्टिक के अदर एडवांटेजेस भी होती है, लिपस्टिक को लिप्स पे लगाने से मॉइस्चराइज रहती है लिप्स, सो वो नॉट ओनली रेड रेड रहती है बट वो देयर इज नो नमनेस इन योर लिप्स, इट डजंट गेट ड्राइड अप, वो अनमॉइस्चराइज नहीं होती है, वो मॉइस्चराइज रहने के लिए लिपस्टिक यूज होते हैं। और लिपस्टिक में हम यूजुअली 3 बेसेस यूज करते हैं। अगर आप एक ही बेस यूज करते हैं, सपोज ओजेकेराइड और कैंडेलेला और कैलनुएबा, एनी वैक्स, और वो वैक्स मेल्ट हो गया तो वो लिपस्टिक तुरंत ही चली जाएगी लिप्स से, फिर उसका फायदा क्या लगाने का। तो 3 अलग अलग बेसिस हम लगाते हैं, सपोज कैंडिलेला, कैलनुएबा एंड ओजेकेराइड, वी कंबाइन दीज वैक्सेस, और हर एक का मेल्टिंग पॉइंट अलग है। तो सपोज अगर आप बाहर राजस्थान में कहीं गए, वहां टेम्परेचर बहुत हाई है, तो वहां पे एक मेल्टिंग, एक फटाक से मेल्ट हो गया, बट बाकी तो बेस है, तो वो 2 बेस की वजह से लिप्स फिर भी मॉइस्चराइज रहेंगे। So that is the reason we used a mixture of bases in lipsticks. नेक्स्ट इज एरोजोल्स। एरोजोल्स आपने काफी बार देखा होगा, नोज माउथ के थ्रू काफी बार एस्थमेटिक पेशेंट्स यूज करते हैं इसे, नेब्यूलाइजर्स, ड्राई पाउडर इनहेलर्स। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स है, जैसे कि प्रोपेलेंट, डिप ट्यूब, एक्टिवेटर, मेटल वॉल्व, प्रोपेलेंट, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट, ये सारे टर्म्स जो आपको याद होने चाहिए। एंड ऑल्सो द टाइप्स ऑफ कंटेनर्स यूज्ड फॉर एरोजोल्स, एंड these are the various parameters for which इवेल्युएशन टेस्ट फॉर एरोजोल। अगर आप वो स्प्रे कर रहे हैं तो वो 1 सेकेंड में कितने स्प्रे हो रहे हैं वो भी याद रखना होता है। अगर वो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट का रेशियो है तो वो कितना उसका रेशियो है। तो स्प्रे पैटर्न, अगर आप उसको स्प्रे कर रहे हैं तो वो कैसे स्प्रे हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है या स्कैटर उसकी नोजल है जिसकी वजह से वो स्कैटर्ड स्प्रे हो रहा है, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट एज वेल। आखिरी है पैकेजिंग मटेरियल्स। जब भी हम कोई भी डोसेज फॉर्म बनाते हैं, तो टैबलेट्स हो, कैप्सूल्स हो, इंजेक्शन हो, उसे पैक करते हैं जरूर, राइट? सीधा बना के इंडस्ट्री से डायरेक्टली यू डू नॉट इंजेक्ट इन योर बॉडी। सो पैकेजिंग शुड बी हाईली स्टराइल एंड इट शुड बी हाईली सेफ। अलग अलग मटेरियल जैसे ग्लास, रबर, एल्यूमिनियम, लेड, निकल, स्टील, प्लास्टिक यूज होते हैं। अब अपने टैबलेट्स, तो टैबलेट्स जो है वो सिर्फ एक टाइप की पैकेजिंग में नहीं आती, ब्लिस्टर पैकेजिंग होती है जिसमें पॉपअप करते हैं। एक होता है जिसमें हमको एल्यूमिनियम फॉइल, एलू पैकेजिंग बोलते हैं उसको, जिससे हमको ब्रेक करना होता है टैबलेट्स। कैप्सूल जो होती है वो पॉपअप साइड्स, कंपार्टमेंट पैकेजिंग में आती है, मतलब एक कैप्सूल से एक कंपार्टमेंट से निकाल दी। सॉलिड, अगर यूनिट डोसेज फॉर्म है, अगर बल्क डोसेज फॉर्म है तो वो सैशेज में। जैसे अगर कोई पाउडर है, इलेक्ट्रॉल पाउडर, सो इलेक्ट्रॉल पाउडर सैशेज में गिरते हैं, हम लोग उसको कोई पैकेजिंग में नहीं देते क्योंकि वो बल्क डोसेज फॉर्म है, उसको पानी में मिला के पूरा पाउडर मिलाना होता है। सिमिलरली पेरेंटेरल्स, तो उनको वायल्स या एम्प्यूल्स यानी कि छोटी छोटी कंटेनर्स में भरते हैं ताकि वो वन टाइम यूज हो जाए। अगर मल्टीपल है तो एम्प्यूल्स यूज, अगर सिंगल है तो वायल्स,
मल्टीपल है तो एम्प्यूल्स, डिपेंडिंग अपॉन द डोसेज फॉर्म। ऑल्सो पैकेजिंग के 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शरी पैकेजिंग। प्राइमरी जो अगर आप एक टैबलेट को भर रहे हो तो वो एक टैबलेट या फिर एक पर्टिकुलर पैकेट ऑफ टैबलेट यानी कि 10 टैबलेट्स, सो वो हो गई प्राइमरी पैकेजिंग। अब अगर कोई होलसेलर है तो वो सिर्फ एक टैबलेट का पैकेट तो लेगा नहीं फार्मेसी स्टोर में, वो अलग अलग टैबलेट के पैकेजिंग लेगा। तो सपोज उसने 10 टैबलेट के पैकेट्स लिए और अब 10 टैबलेट के पैकेट्स में टोटल 100 टैबलेट्स है, एक टैबलेट के पैकेट में 10 टैबलेट है तो 10 टैबलेट के पैकेट में 100 टैबलेट्स है। सो अब इन 100 टैबलेट्स को हम कौन से अदर कोई पैकेजिंग में रखेंगे, क्या हम उसको कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रख रहे हैं या कोई कार्टून है जिसमें हम रख रहे हैं, तो वो हो गई सेकेंडरी पैकेजिंग। टर्शरी पैकेजिंग जो अगर हम उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो वो कितने टन्स में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग वेरी होगी उस हिसाब से। So primary packaging, tertiary packaging and secondary packaging. These are 3 important types of packaging. So that's all for today's video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो so please do like, share and subscribe and let me know in the comment section which video you want me to upload next. Thank you so much everyone for watching the video.